ओके बच्चों, अभी मुस्कान धाकड़ा पहले तो प्रेजेंटेशन और कौन कौन आया? एक मिनट में तुम लोग का वो ले लेती हूँ। 16 ही तो बच्चा आया है, कहाँ है ब्रिज? चलो मुस्कान, Yes, ma'am. अब कर दो उसको। क्यों आपको My बुलाना topic, पड़ता? क्यों आप रोज रोज जा रहे थे छोड़ के क्लास? ma'am, वो दूसरों को परेशानी natural करना अच्छा resources. लगता है? चलो बोलो, आप टॉपिक क्या है, चैप्टर क्या है? Ma'am, types of resources. नहीं तो कहाँ ज्योग्राफी का, कहाँ से बोल रहे हो? Geography. चैप्टर कौन सा चैप्टर? Types of resources. First chapter, resources. हाँ यही बोलो, हाँ फर्स्ट बोलो। My topic is types of resources. Natural resources. Natural resources are those resources who drawn from nature and used without much modification. On the basis of the development, the resources are classified into two: actual resources and potential resources. Actual resources are those resources their quantity is known and these resources are used in the present. Potential resources are those resources their entry quantity is do not be known and they do not be used in the present. The natural resources is classified into two: renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources are those resources who replenish quickly, and non-renewable resources are those resources they have the limited stock. Human-made resources. Human-made resources are those resources people make the use of nature for making buildings, bridges, roads, and vehicles. They are known as human made resources. Human resources. People make the best use of nature to make more resources, if they have the technology, skills, and knowledge. These are known as human resources. Thank you. हैव यू कंप्लीटेड? Yes, ma'am. यू शुड, जब भी आप खत्म करो प्रेजेंटेशन तो बोलो थैंक यू। Thank you. मुस्कान, डू यू नो समथिंग? मुस्कान अपियर। मुस्कान कैमरा खोलो। Yes, ma'am. योर वॉइस इज सो गुड, और बहुत अच्छा तुम्हारा इंग्लिश है, बहुत अच्छी तरह से बोलती हो। पीछे क्यों रहती Thank हो, you, क्लास ma'am. क्यों नहीं आती हो बेटा? जब आपके पास गुण है उसको तो देखो, फुल मार्क्स तुमको मिल रहा है, क्या है ये? ओके, अभी कौन है? मुस्कान धाकड़ 3, 2, और ये करण कुमार। करण कुमार मैम का जस्ट अभी लेफ्ट करा। अभी पिछली बार तो बात करा था। मैम आ करना गया, मैम आ गया। मैम हाँ आ वो गया। मीटिंग में है। उसका टेक्निक खराब हो गया होगा। करण बोलो बेटा। यस मैम। उसको नहीं आ रहा, वो लेफ्ट करके। करण बोलो। चैप्टर 1, ज्योग्राफी रिसोर्सेज। हम्म टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स। आप कहाँ से बोल रहे हो? नहीं नहीं, स्क्रीन में नहीं है, स्क्रीन में आओ तभी बोलो। मैम मेरा कैमरा नहीं हो रहा ओपन। क्यों नहीं हो रहा है? हो नहीं रहा, क्यों कर नहीं रहे हो? मैम वो हो ही नहीं रहा। चलो बोलो, मार्क काटूंगी और क्या। Natural resources: resources that are drawn from nature and used without much खुल के बोलो, modification खुल are के बोलो। हाँ, resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soil minerals are all natural resources. Many of these resources are free gift of nature and can be used directly in some cases.
tools and technology may be needed You to joined the class in two places. हाँ बोलो and करण, मैं सुन रही तुमको. natural resources in the best possible way. Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are ultimated and are not affected by human activities, such as solar and wind energy, yet careless use of certain renewable resources like water, soil, and forest can affect their stock. Non-renewable resources are those which have limited stock. प्लीज Once the मीना आ जाओ, stock प्रेजेंटेशन are देना अभी. exhausted, it may take thousands of years to renew. क्यों Human करण, देख के बोल रहे res- हो? no, ma'am. देख. ओके, बोलो बोलो बोलो. Human-made resources. Sometimes natural substances become resource only their original form has been changed. Iron ore was not resource used until people learned to extract iron from it. Human resource. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill, and technology to do so. That is why human beings are special resources. Conserving resource. Using resource carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future are called sustainable development. Okay. हो गया. करण, यू फिनिश्ड? Yes, ma'am. ओके. अभी गगन मीना, तुमने पिछली बार बोला था कि आज बोलोगे. कहाँ है गगन? गगन. यस मैम. अरे गगन, प्रेजेंट करो भाई, खत्म करो काम. किधर है गगन? हाँ, यही तो है, करो. कर रहे हो क्या? गगन, इसको लंबा मत खींचो, हमको बहुत परेशानी होती है. पहले कैमरा खोलो. गगन शुरू करो. गगन. गगन. अरे ऑफ करके, क्लास में है पर ऑफ करके बैठा है. गगन, व्हाट द प्रॉब्लम? हेमा मैडम वहां बैठती है स्टाफ रूम में. हाँ बोलो गगन. कुछ तो बोले. अरे तुम लोग जरा बात करके देखो गगन से, मैं चिल्ला नहीं सकती. अंकुश जरा बात कर गगन में. गगन मैम बोला नहीं है. गगन तीन गगन मैम बोल रही है. बार ज्वाइन हो चुका. गगन ज्वाइन किया है उसने. नाम गगन गगन मैम बोला बोल नहीं रही है. है. प्रेजेंटेशन बनाई है नहीं? गगन मैम नेटवर्क नहीं है, उसने मैसेज किया है. मैम गगन ने लिखा है कि उसके मोबाइल का नेटवर्क इशू हो रहा है. करुणा सिंह, तुम यस मैम. करुणा आई है? नो मैम. नो मैम. तब तक वो एब्सेंट रहेगी. और अभी आगे उसके बाद ब्रिजेश लोधा. ब्रिजेश लोधा क्लास में है अंकुश? नो मैम. नो मैम नहीं है. लड़का क्या सोच रहा है अपने बारे में? गगन मीना. करुणा सिंह तोमर. मैम एब्सेंट. नो मैम नहीं है. मनु लोधा. मैम नहीं है मैम, पर जब मैंने उसको फोन करा था तो नियति, आपने बात करा था इनसे?
यस मैम, हम करा था मैम, वो बोल रही थी कि मैं आऊंगी पर आई नहीं। सुनाई जरा, इतना बेगिंग कर रहे हैं लोग, क्या करें हम, बताओ। नियति आपने बात करा था, क्या हुआ बात में? मैम उसने बोला था कि वो आएगी पर वो आई नहीं। पायल सिंह तनवा, मैम उसको पायल भी कॉल करा था। मैम उसको भी कॉल करा था, उसने भी कॉल करके यही बोला था कि वो आएगी पर आज पी भी में नहीं कौन आई। है? पी में कौन है? इसी इन द क्लास पायल? नो मैम नहीं है। प्रियंका मालविया? मैम कॉल नहीं उठाया। प्रिंस? है प्रिंस मैम क्लास आप में। यस मैम, यस मैम, क्लास में। क्लास में हो? आप बोलो, प्रेजेंट करो। उस दिन आपका कट गया था, एक ही मार्क देकर रखा मैंने। प्रिंस प्रेजेंट यस करो। मैम। Om Shri Sai Ram. Today I am presenting chapter 4 Agriculture of Geography. हाँ, Literally speaking, agriculture ये means कैसी the आवाज आ रही है? हाँ बोलो, प्रिंस बोलो बेटा। literally speaking, agriculture means the production of crops and livestock on a लाइव farm. स्टॉक, Generally speaking, प्रिंस लाइव स्टॉक, लिव स्टॉक नो, लाइव स्टॉक बोलो। livestock is livestock ये स्पीकर मुंह के on पास लो, a स्पीकर farm. जो है। On a farm, generally speaking, agriculture is cultivation of crops in economics. Agriculture means cultivation of crops along with animal and dry एनिमल्स और लाइव स्टॉक। चलो। poultry, dairy farming, fishing, and even forestry. Agriculture is important not only for the supply of food but also for the provision of raw material for other industries such as textiles, sugar, jute, vegetable oil, and tobacco. Agriculture is not only an occupation for people but also a way of life. Most customs and culture in तो the world बैठे हो क्या? वाई कांट आई सी यू? बोलते जाओ प्रिंस, around मैं तुमको सुन रही हूँ। around agriculture. मैम हो गया। ओके। प्रियंका मालविया, नियति इज इन द क्लास, नो मैम। नो एंड मैम। राज वाल्मीकि। मैम वो भी नहीं है। ये लोग कर क्या रहे हैं? अंकुश, यस अंकुश, मैम, यस मैम। एक बार बगन मीना को बात करना है। गीतिका साहब का हो, गीतिका साहब दे दिए? नहीं दे दिए, दे दिए। करुणा सिंह तोमर मैम और नहीं है। अरे उससे बात करो, को एग्जाम देना है तो दे दे, नहीं तो नहीं दे। मंडे को मैम कॉल फाइनल है। नहीं उठाया उसने। अरे कोशिश करके देखो। पायल सिंह तनवर, मंडे तक, मंडे को बोल देना मंडे इज द लास्ट डे फॉर अपेयरिंग। फिर प्रियंका मालविया, राज वाल्मीकि, बस ये, और एक शीतल मालविया। शीतल मालविया उठाई फोन? मैम नहीं उठाया। नहीं उठाई तो एक बार और ट्राई करो, और क्या। बोल ओके देना मैम। मंडे इज द लास्ट डेट फॉर द अपेयरिंग एग्जाम। ओके मैम। चलो, हम थोड़ा सा बच्चा है ना, उसको पढ़ लेते हैं। तुमको सिलेबस मिला क्या? नो मैम। नो मैम। तो देंगे सर, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लिखवा तो लिया। तुम तो रेडी हो जाओ सब चीजों के लिए, है कि नहीं? यस यस मैम। मैम। अपने को रेडी रहना सब चीजें पूरा के लिए। ओके, हम लोग पढ़ रहे थे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना?
कहाँ तक पढ़े थे बच्चे? मैम कैसे अरे जो रास्ता बंद कर दिया मैंने। तो कहाँ पे है बताओ, कौन आया लेने? ठीक है जाए अपने। हाँ बच्चों कहाँ तक थे? चलो कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करते हैं। हाँ मैंने देखा, एक टिक मारा एंड इट्स एंड एक्सपेक्टेशंस, और फिर थोड़ा कोशिश करो कि लेट कम कम आवाज करे। गजेंद्र गजेंद्र दिल दहला दे रहे, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी कैसे? इंडिया पॉपुलेशन इन 1947 वाज लार्ज। क्लास कैसे चला गया? क्लास चला गया। यस मैम। बेटा सुन सकते हो, क्लास चला गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैम हम सुन पा रहे हैं। यस मैम मैम हम सुन पा रहे हैं। यस मैम। तुम सुन तो पा रहे, पर मुझे देखना भी जरूरी है ना। अचानक क्या हुआ, वो आपको रखा, मैं साइन कर दिया तो नहीं आ रहा। मैम आपने पेन तो नहीं कर लिया? कुछ नहीं करा भाई, ये आके हिला के गया। मैम आपको कोई एक बच्चा दिख रहा है या फिर कोई भी नहीं दिख क्या रहा? दिख रहा है? नहीं कोई नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं दिख रहा, भी दिखेंगे। ब्लैक स्क्रीन हो गई या फिर कोई लोगो दिख रहा है आपको? कनेक्शन हो गया भाई, आप शांति रखो। मैं आप दो दिख हो रहा है। आयु ज्वाइन है। ओके मैम। कुछ हो गया, हिला के गया गजेंद्र आके। कनेक्शन ही कनेक्टिंग नहीं हो रहा था, गेटिंग रेडी कह रहा है। वही कनेक्शन भी नेट में गड़बड़ है। मैम आप पहले से हो क्लास में, आपने दो टैब से ज्वाइन किया है शायद। यस मैम। मैंने कुछ दो नहीं ज्वाइन करा, अभी मैं कर रही, तुम लोग का माइक ऑन है। तमाम सभी मैंने कुछ नहीं करा भाई। ऐसे क्यों हो रहा है? कितना आवाज करेगा, हो गया। ये कोई भैया मेरा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। हाँ मुझे जो बना है कैसे करूं, आजा बोलते ही बहुत ज्यादा हो रहा है। Can you hear me? यस मैम। इको हो रहा है। यस मैम। इको ये कोई तो हो रहा है, ये लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। चल मैम अब आप लीव हो गई एक से, अब मैम एक से आपने ज्वाइन लीव हो। कर दिया मैम। देखो बेटा मैं कर रही हूँ ना, कोशिश कर रही अब दिख रहा है अच्छे से। मैम ठीक हो गया मैम। पता ही नहीं क्या होता रहता है बार बार। थोड़ा पढ़ाने बैठती है, यहाँ पे ये लोग आवाज करते हैं तो अभी तो नहीं आ रहा है को। यस मैम Yes, अभी ma'am, सही है, yeah. शायद आपने न्यू टैब खोल दिया होगा। मैंने कुछ नहीं खोला था, ये अपने आप से गड़बड़ हो रहा है। मैं आप फिर से 2 से ज्वाइन हो गए। वापस हो गया मैम। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें सिस्टम में, मुझे नहीं मालूम। मैम एक टैब को आप क्लोज कर दीजिए ऊपर क्रॉस का बटन दबा के, जो छोटे छोटे क्रॉस होते हैं उनमें। वही आ गया, वही आ रहा है। वो बता रहा है, अभी रुक जाओ बेटा। मैम को अभी भैया से सीख सकती हूँ एक बार। कैसे
कैसे खोला ये तो बताओ। मैंने कहा तुमको हटाना कैसे कैसे करा ये क्लोज कर देते दोनों बिंदु में से एक को क्लोज कर देते। अरे भैया कैसे क्लोज करना है ये तो बताओ। बस रेड बटन पे क्लिक करके क्लोज। वो करके तो मैं लेफ्ट किया था। हाँ भैया बहुत नॉइज कर रहे हैं, उनको जरा बोलो। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं क्या बोल रहा हूँ। वो बहुत क्लास नहीं ले पा रही है। किसको बोलो, बहुत भयंकर आवाज आ रहा है, कैसे क्लास में। ओके बच्चों देखो कैसे आवाज आ रहा है, देखो मैं क्लास छोड़ के जाऊं बोले उनको, खाली बोलो थोड़ा कम करे। ओके इंडिया's population in 1947 was large, almost 345 million। कितना था 1947 में 345 million। 345 million। सारे लोग मत बोलो, यू नो दिस। मैंने खाली बोला कितने थे, मतलब आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस, पूरे बोलने लग जाते हो। Almost 345 million. It was also divided. There were divisions between high caste and low caste. Between the majority, क्या क्या problem था देखो, ध्यान दो इसमें। There were divisions between high caste and low caste. Between the majority Hindu community and Indians who practiced other faiths. The citizens of this vast land spoke many different languages. They are still speaking many different languages, kinds of food, and practice different professions. How could they be made to live together in one nation state? अंकुश तेरा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी खत्म होने को जा रही है, तू कब सबमिट कर रहा है? मैम करण और प्रिंस ने अपना चार्ट नहीं भेजा अभी तक, मैंने उनको बोला था तब भी। To the problem of unity was added the problem of development. कैसे पढ़ा हूँ, इतना साफ शोर मचा रहे, मैं क्या करूँ। ये नहीं कि हम थोड़ी देर बात करें। मैम मैम ऐसा कर सकते हैं ना कि हम लोग रीड कर ले मैम और आप समझा दीजिए। अरे समझाने के लिए भी तुमको सुनाई देना चाहिए। आप रीड कर लोगे तो क्या होगा, रीड करो जोर जोर से। आई विल नॉट बी एबल टू लिसन। ओके मैम। पढ़ो उन्नति, तुम पढ़ो, मैं तब तक संतोषा को फोन करूँ। Okay, ma'am. The citizens of this vast land spoke many different languages, wore many different kinds of dress, ate different kinds of food, and practiced different professions. How could they be made to live together in one nation state? To the problem of unity was added the अरे problem of भाई क्लास चल रहा है, कुछ तो कृपा करो। at independence. The vast majority एक of मिनट the बेटा, मैं एक मिनट आई उनको बोल रही हूँ, कोई नहीं सुनेगा, उनको क्लास नहीं सुनेगा। ये क्यों कर रहे हो?
सैनी भैया कर रहा है, बताओ। स्कूल को ऑफ रखो, फिर तोड़ा फोड़ी करो, कैसे करेगा ऑनलाइन क्लास? कितनी आवाज आ रही है पता है? मना करना सुन रहे, सैनी भैया खुद कर रहा है ऊपर चढ़ के। या तो स्कूल बंद रखो, फिर तोड़ा फोड़ी करो। हेमा तुम पढ़ा सकती है इसमें? ओके बच्चों, द सिटीजन्स ऑफ दिस वास्ट लैंड स्पोक मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। और मेनी मुझसे बोलते नहीं बन रहा है, और मैं चिल्ला के बोलूं। और मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेस, ate different kinds of food and practiced different professions. How could they be made live together in one nation state? There were so many problems. आपने देखा, there are caste problem, there are food habits. Every state has different food habits. You understand that? Yes, ma'am. That's why we talk about national integration. And how could they be made to live together? कैसे आप बोल सकते हो? वो बोलेगा नहीं मैं तो ये नहीं खाऊंगा, जैसे मैं कहती हूँ मैं रोटी नहीं खाती, कोई बोले मैं तो चावल ही नहीं खाता हूँ, कुछ बोल देगा, फिर क्या करेंगे हम? एक रोटी मिल जाता तो अच्छा होता, ऐसा कुछ बोल देगा। मैं कहूँगा थोड़ी सी चावल मिल जाए तो अच्छा होता। और ऐसे ऐसा करने से क्लैश होगा, तो अपने इसीलिए सब लोग अपने अपने घर में खाना खाते हैं। फिर नेशनल स्टेट कैसे बनाएंगे कि हम एक राष्ट्र कैसे बनाएंगे? To the problem of unity was added the problem of development. At independence, look at this English, at independence, the vast majority of Indians lived in the villages. जब इंडिपेंडेंस हुआ तो सारे लोग क्या करें ना, गांव में रहते थे। Farmers and peasants depended on the monsoon for their survival, क्योंकि तब इरिगेशन सिस्टम ही नहीं था। Nobody knew how to get water for the cultivation. वही बारिश की पानी monsoon water में everybody used to depend. So did the non-farm sector of the rural economy. For if the crops failed, barbers, carpenters, weavers, and other services groups would not get paid for their services either. अभी कोरोना में क्या हुआ? दुकान बंद, मार्केट बंद, रास्ता बंद, ट्रांसपोर्टेशन बंद, माल नहीं आ रहा है। जिसको बोलो मैडम अभी तो नहीं मिलेगा, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। तो ऐसे ही लोग, और या तो महंगाई बढ़ गई बहुत ज्यादा। अगर क्रॉप फेल हो गया तो क्रॉप वाज द मेन इकोनॉमिक थिंग। फेल हो गया तो नाई भी नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर, बार बार नहीं, कारपेंटर नहीं, उनको कौन पूछता है जब खाना ही नहीं मिल रहा है? सबसे पहले घर में क्या है? आप सबके घर में गेहूं भरते कि नहीं भरते? तुम लोग भरवाते कि नहीं भरवाते? क्यों? साल भर का अनाज है वो। जो रोटी ईटर्स है, they keep their गेहूं, collect their food for the whole year, because they don't purchase atta from the market and eat. They grind their गेहूं and then they eat their roti. For their son, सबसे पहले खाना। In the cities, factory workers lived in crowded slums with little access to education or health care. एजुकेशन को मारो गोली, हेल्थ को मारो गोली, पेट तो भरे पहले। आदमी जब खाएगा, रोटी कपड़ा मकान में से सबसे पहले रोटी है। फटा कपड़ा आदमी पहन लेता है, फिर तो एजुकेशन तो उनके लिए लग्जरी है। बीमार पड़ेंगे, रहेंगे ऐसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे? दे हैव नो मनी, और झुग्गी में रहते हैं। क्लियरली द न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट इट्स मासेस आउट ऑफ पॉवर्टी बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहला यही था। धीरे धीरे कैसे चेंज हुआ ना, तो 9th क्लास में होगा ना, तुम पढ़ोगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैसे चेंज हुआ। पहले सभी लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे, दैट वाज द प्रायोरिटी। सबके मुंह पे रोटी मिले, खाना मिले। ये तो भूखा आदमी को लेके तुम क्या काम करेंगे? बोल रहे हम बड़ा इंटेलिजेंट है। जो इंटेलिजेंट आदमी वो खाता है, हवा पी के नहीं कर सकता काम। क्लियरली द न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट इट्स मासेस आउट ऑफ पॉवर्टी। भारत को सबसे पहले गरीबी से, तभी तो पॉवर्टी इज चैलेंज। अभी भी 9th क्लास में पढ़ रहे इकोनॉमिक्स में। आज भी हमारा देश उभरा नहीं, पर बहुत उभर गया। आज तो लोग पिज्जा खाते हैं,
पहले तो खाली राइस रोटी खाते हैं, वो तो लग्जरी हो गया पिज्जा खाना उनके लिए। बाई इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, और ये एक्टिविटी का, ये एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे? मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग मिला के, अभी क्लास 9th में ही तुम पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। लैंड तो फिक्स है ना, आपका जो मकान है, आप जिस घर में रहते हो उसका एरिया फिक्स है कि नहीं है? यस मैम। हमारे स्कूल में देखो, अभी जो आवाज हो रहा था, मैं हल्ला कर रही थी, क्यों क्यों वो लोग तोड़ फोड़ के कुछ उसी बिल्डिंग में, उसी एरिया में, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में they will break, they will bring changes, they cannot increase because the area is fixed। स्कूल से चलो एक और लंबा बना दे, नहीं, फील्ड है वो। whatever you have to do within the infrastructure that is having, वही चल रहा है, जो कुछ चेंजेस करना within the building। ऐसे ही हमारे घर में भी, हमारे भी लैंड फिक्स है, आप कितना भी खरीद लो, 100 एकड़ खरीद लो, है तो 100 एकड़, 200 एकड़ तो है ही नहीं। उसके बाद तो आपका यू हैव टू वर्क ऑन दैट फिक्स्ड लैंड, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जो भी है, बिकॉज लैंड ऑलवेज इज फिक्स्ड। तो उसके लिए मेथड अलग होगा, सब काम होगा। एंड बाय प्रोमोटिंग, कहते हैं ना मॉडर्न मेथड, अभी हम पढ़ रहे थे, मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग इट नीड्स लेस लैंड मोर कैपिटल। लेस लैंड कैसे? लैंड इज फिक्स्ड इसलिए लेस है, वो पैसा ज्यादा खर्च करना है क्योंकि उसमें दवाई चाहिए, ये चाहिए, बीज चाहिए। और जो एग्रीकल्चर भारत की आजादी के टाइम में 1980 द इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे जो उनको जो एरिया मिला, वो लैंड तो फिक्स मिला, बट ट्रेडिशनल देखो कैसे कर रहे हैं सबसे ज्यादा सैनी भैया कर रहा है। एंड बाय प्रमोटिंग न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज, आजकल बहुत जॉब है, बट यू शुड बी एबल टू फिट फॉर दोज। आजकल तो लोग अपना बैंक से लोन लेके भी अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक आदमी पान बेचता है ना, तुमने देखा? वो पहले सबसे पहले वाले ईडी मैडम जो थी, उनके घर में काम करता था, तो अभी वो पान का दुकान थोड़ा लोन लेके कुछ करके, मैडम ने कुछ हेल्प करागा करके अपना चला दिया, तो नाउ ही इज रनिंग हिज बिजनेस। आजकल बहुत काम है, जो आर्ट इंटीग्रेशन तुमने इतना काम किया, ऐसे बहुत काम आप बड़े होकर क्वालिफाई करके स्किल्ड एजुकेशन, हमारे स्कूल में स्किल का एक लैब बन गया, और अटल टिंकर लैब किया है, टिंकरिंग लैब, तो उसमें स्किल भी सीख सकते हो, तो यू कैन मैनेज योरसेल्फ। आजकल इंजीनियरिंग के साथ वो भी है, क्या है वो, आईटी इंडस्ट्री, आईटीआई कॉलेज है ना राघवगढ़ में, स्किल ही तो सिखाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कारपेंटर, जो भी कुछ है, कारपेंटरी बहुत जरूरी। इलेक्ट्रिसिटी तो बड़ा एवरग्रीन डिपार्टमेंट है, हर जमाने में हर व्यक्ति को इलेक्ट्रिसिटी का काम जरूरत पड़ता है, खाली इंजीनियर बनने से नहीं। ये तो जेल में तो आधे इंजीनियर जूनियर इंजीनियर्स। व्हाट इज जूनियर इंजीनियर? दे आर आईटीआई पीपल। वो कम काम करते, जो इंजीनियर कम काम करते हैं। डॉक्टरी वो सब लग्जरी है, 5 साल पढ़ो, उसको नौकरी मिले ना मिले, अपना तुम डिस्पेंसरी अपने वो क्या करते हैं, कंसल्टिंग। कितने सारे डॉक्टर है, अपना लैब खोल के बैठ जाओ, अपना क्या उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिक, अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाओ। यू कैन ट्रीट लाइक दैट, खाली ऐसा लिख के दे दोगे प्रेस्क्रिप्शन। और जो सर्जन है उसको सर्जरी करना पड़ेगा, कितने बड़े बड़े सर्जन है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर नंदी, उनकी हाथ लग गया, मतलब आदमी समझ में। मैंने बोला, एक यहाँ मिसेस गांगुली थी, उनका बेटा पढ़ता था रुद्रिक्ता, उनका ऑपरेशन होना था, तो मैंने बोला कौन डॉक्टर कर रहा है? राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हो रहा था, जेल के लोग वहीं जाते दिल्ली। कहते डॉक्टर नंदी। मैंने बोला आप भूल जाओ, एक और मेरी स्टूडेंट भी है, अग्रवाल पढ़ती थी, जेपी से आती थी, वो उसका नाम भूल गई मैं। तो फिर वो उसका भी पेनिक्रिया में प्रॉब्लम था, मैंने डॉक्टर नंदी उसको, मैंने बोला मैम खुशी अग्रवाल नहीं, खुशी उसे मुझे नहीं मालूम, खुशी नहीं कुछ है, मुझे आई डोंट रिमेम्बर आज में। तो 9th क्लास में थी, तो उसका ऐसा, उसके पेरेंट्स मुझे पता नहीं। मैंने डॉक्टर नंदी अगर ऑपरेशन कर रहे, आपको भगवान का हाथ मिल गया समझ लो। वो अमेरिका जाते ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसे जाते रहते हैं, ऐसे फेमस डॉक्टर है। बाकी तो एबीसीडी डॉक्टर भी है,
आपको अपने आप को खुद का काबिल बनाना है, वो स्किल सीखना है। वो ये डॉक्टर जो है ये फ्लाइंग करते हैं एक शहर से दूसरे से, और वो दोनों सही है अभी, जिसको डॉक्टर नंदी ऑपरेशन करा था, उनका काम तो फेल ही नहीं हो सकता। ये कैसे ठप करे ये नहीं सोच रहे क्या। और जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री, उसमें 10th क्लास में एक क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, अरे हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ये बताओ ना। उसमें बढ़िया दिया, अगर हम नया स्कूल खोलेंगे तो क्या होगा। सर मैम उसमें बहुत सारी जॉब्स आएंगी मैम, टीचर्स की। हाँ देखो कितने सारे लोग काम कर रहे हैं अभी, पियोन से और गाड़ी बस चलाने वाले, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। हो गया ना क्रिएटिंग जॉब। यस मैम। और एक इरिगेशन सिस्टम चलाना, क्या करोगे तुम, पानी आएगा खेतों में, उसमें भी नहर खोदने में लोग चाहिए, या कुआं खोदने में लोग चाहिए कि नहीं चाहिए। So unity and development had to go hand in hand. If the divisions between different sections of India were not healed, they could result in violent and costly conflict. यहाँ तो घर में खाने को नहीं है, इतनी गरीबी चल रही देश में, ऊपर से तुम कहते मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, लड़ाई करो इस बात पे, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो देश सुधरेगा? या तो झगड़े में पड़े रहो, या तो इंप्रूव करो। Between different sections of India were not healed, they could result in violent and costly with Muslims and so on. At the same time, if the fruits of economic development did not reach the broad masses of the population, it could create fresh divisions. फिर से डिवीजन हो जाएगा, जितने बंटेंगे जितने टूटे उतना टूटेगा देश। एक आदमी है, उसको दो बेटे हैं, ठीक है, एक पापा है, उसको एक बेटा है। पापा का जो जमीन था उसके पास 1 एकड़ जमीन है, उसके बेटे को 1 एकड़ जमीन ट्रांसफर हो गया, पर इस बेटे को 2 बेटे हो गए, तो 1 एकड़ को आधा आधा करना पड़ा। इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड। फिर इनकी बच्चे होंगे, टुकड़ों में बढ़े, जितना टुकड़ों में बढ़ेगा उतने मेड़ बनेंगे, जमीन की एरिया खत्म होता जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। तो इसीलिए ये जितने बटेगा उतना टुकड़ा होगा और उतना कम होगा पैदावार। एक लैंड इतना, उसका आप घेर दोगे तो उसकी उपजाऊता खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। At the same time, if the fruits of economic development did not reach the broad masses of the population, it could create fresh divisions. For example, between the rich and the poor, between cities and the countryside. तभी population control की बात होता है। Between regions of India that were prosperous and regions that lagged behind. जैसे पंजाब है, जैसे उड़ीसा है, बिहार है, ये पीछे है, पीछे एकदम सबसे ऐसे दिखा रहे थे, अभी तो उड़ीसा आगे आ गया, बिहार अभी पीछे है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहां कुछ डेवलपमेंटल काम हो ही नहीं पाया। अभी मैं देख रही थी 9th क्लास में क्वेश्चन लिख रहा है, क्या बोल रहा है, ये जो पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम चलता है वो कामयाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे लोग पैसे खा जाते हैं, हम टारगेट लेके और सच्चाई से हम काम नहीं करते। आपका पढ़ाई देखो, ब्रिजेश लोधा, ये राज वाल्मीकि इधर उधर घूम रहे, नहीं आ रहे क्लास में। क्यों नहीं आ रहे? पढ़ नहीं रहे, नेग्लिजेंस। और जब उनका एग्जाम का टाइम आएगा वो फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? तो गरीब से गरीब बनते चले जाएंगे वो लोग। देखो रोज कृतिका चौहान, ये 11:49 5 मिनट बच्चा है, 1 मिनट बच्चा, 11:50 में तुम्हारा क्लास बंद होगा, ये कितने में बंद होगा? 11:50 11:50 में बंद होगा। तो 1 मिनट है, अभी कृतिका चौहान ज्वाइन कर रही है, ये टाइम है। कृतिका को पूछा क्यों लेट आई, मेरे घर में मेहमान है। ऐसा थोड़ी काम चलता है। 5 मिनट, 1 मिनट बचा है, ओके। एट द सेम टाइम द फ्रूट्स, ये नहीं पहुंच सकता किसी के प्रवृत्ति। और सबसे बड़ी बात है, ये जो बंटवारा कास्ट की ग्रुप में, ये हिंदू मुसलमान की बंटवारा, अगर तुमको समझ नहीं आ रहा तो तुम ही टूट जाओगे। और क्या मतलब है? A constitution is written,
Between December 1946 and November 1949, some 300 Indians had a series of meetings on the country's political future. देश की जनता तो लड़ मर रही है, समझ ही नहीं, भूखे प्यासे, फिर भी मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान। भाई तू भूखा है, पहले अपना भूखमरी का तो सही कर उपचार, लड़ाई छोड़ के रिलीजियन बेस में लड़ाई कर रहे हैं। तो सरकार के माथे पे पड़ रहा है, बात करे तो करे क्या, ये सब ध्यान देना है। जो इतने सारे लोग आए हैं, कितने लोग, ये जो 500 प्रिंसली स्टेट्स मिलेंगे और 8 मिलियन रेफ्यूजी जो आए हैं, प्लस 345 मिलियन लोग हैं, इनको सबको स्थायी उनको रखना पड़ेगा कि नहीं। जो पाकिस्तान से रेफ्यूजी आए हैं, तो पढ़ते दूसरे बुक में लिखा था, कोई एक आता था पहले, कुछ आता था, क्या नाम है, क्या एग्जाम था, बड़ा सा लंबा पेपर आ जाता था स्कूल से, बाहर से, मैं भूल गई उसका नाम, क्या बोलते थे। उसमें लिखा था पाकिस्तान से आई हुई चौधराइन यहाँ के बर्तन मांग रही लोगों के घर में, इंडिया में कोई काम ही नहीं मिला, ऐसे करके लोगों ने गुजारा करा। बहुत दुख वाला बात है। मैं बच्चों को पहले पढ़ा के उसको समझाती थी, उसका नाम भूल गई, सीसी के टाइम में आता था। The meetings of this Constituent Assembly were held in New Delhi, but the participants came from all over India and from different political parties. These discussions, ओडिशा में क्या गरीबी है, मैंने देखा था, क्या गरीबी था। मैंने देखा, मेरे साथ क्लास में पढ़ते थे बच्चे, खाने को नहीं है उनके पास। 1:30 बजे हमारा लंच ब्रेक होता था, क्यों, 10 बजे स्कूल है, 1:30 बजे होता था। मेरे साथ में वो लड़की पढ़ती थी, रमामणि दास, अभी भी है वो, सीधे टीचर, सरकारी टीचर है आज, संस्कृत टीचर। उसका संस्कृत और मैथ्स दोनों बच्चे होते थे, तो संस्कृत में शिवाज बैठा, पानी पी के वापस आ जाती थी। जो भूखी गई थी ना स्कूल, 1:30 बजे जाके घर में खाना नहीं है, उसका एक चाचा जी वही कमाते थे पूरे घर में, उसकी माँ घर घर घूम के मुरमुरा बांटती थी। इतना कष्ट, खाली पानी पी के मैं उसके साथ जाती थी, उसके चलो मेरे साथ में 1:30 बजे उसके साथ जाती थी। उनके घर में खट्टा संतरा होता है, पेड़ था, इस लालच में जाती, पूरे भूखे वापस आती। कभी ऐसा नहीं कि रोज, कभी कभी कुछ खा के आती थी, खाली चावल, उसके साथ थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्ची, ऐसा कुछ खा के। मैंने आंखों में देखा, मेरे क्लास में ही बच्चे पढ़ते थे। These discussions resulted in the framing of the Constitution, which came into effect on 26 January 1950. ये जो Constitution came into effect in 26 January 1950, इसीलिए हम what do we celebrate? Republic Day. This is the reason. Yes, very intelligent. One feature of the Constitution was its adoption of universal adult franchise. What is this universal adult franchise? Everyone, irrespective of their class and caste, has the right to vote. Adult, every adult. सबसे बड़ी चीज खत्म कर दिया। All the adults, those who are in India, it is 18 years. In our country, all the adults, that is 18 and above, irrespective of caste, creed and religion, they will, and sex. कुछ कंट्री में देना नहीं है, फ्रांस में देखा ना, औरतों को वोट देने का अधिकार ही नहीं है। कैन कास्ट वोट, एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 21, तब 21 था, अब इसको 18 कर दो काट, would be allowed to vote in state and national elections. ये 21 जब हम थे छोटे ना, तब 21 था, अभी जब तुम छोटे हो तो ऐसा। कौन ऐसा पागल होकर कर रहा भैया, एक हमसे भैया, कौन पागल होकर ऐसा कर रहा है, कौन कर रहा है? नहीं तो क्लास तक तो प्रिंसिपल सर नहीं है क्या, उनके कान के पास ही फोड़। This was a revolutionary step, for never before had Indians been allowed to choose their leaders. बस यहीं तक, आगे से पढ़ेंगे, शांति पाठ करते हैं। मेरे को भी क्लास है 10th में।
ओम शांति शांति शांति। सायरा मैम। सायरा मैम। सायरा मैम। सायरा मैम। सायरा मैम। supporter, team India supporter, टीम इंडिया सपोर्टर कौन देख रहा है भाई?